let's begin. Yes, we basically have completed this particular structure. We understood. अरे स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुआ. Okay. So we are done with this particular question, correct? But I want you to observe something very special about this polygonal. Okay. So I want you to focus on the diagram that you are seeing right now. This is the diagram I'm talking about. मेरा स्क्रीन फ्रोज हो गया है क्या? नहीं अभी दिख रहा है. नहीं सर दिख रहा है. हाँ मेरे मोबाइल में मेरे को लेट दिख रहा है थोड़ा. हाँ सर हमारे फोन पे भी लेट आ रहा है थोड़ा. Maybe it's bandwidth issue. So, dear, my point over here is that I want you to observe two vectors at a time. That means at first we will observe vector P1, vector P2. Let's see what is going to happen when we observe them. Okay. So this P1 and this P2 are actually creating something similar to triangular law. And if these are creating something similar to triangular law, you can connect them with the resultant. Okay, so this one over here is P1 plus P2. Now I want you to focus only on P1 plus P2 and P3. Okay, so I want you to focus on these two vectors. So when you focus on these two vectors, you can see the resultant, which I'm going to draw. It will look like this. तो ये किसका रिजल्टेंट हुआ? P1 plus P2 plus P3 का. Now I want you to focus on the final two vectors, that is this vector and then this vector. तो ये क्या हो गए? इनका भी ये भी तो ट्रायंगल के ट्रायंगुलर लॉ के दो वेक्टर्स हो गए. So you can now draw final resultant. Starting point of the first vector, say ending point of the second vector. So this is your final resultant, which is combination of P1 plus P2 plus P3 and add P4 to it. हो गया complete. मतलब what my point over here is that polygonal law is actually accumulation of triangular law. तो जैसे अभी हम हमारे पास कितने वेक्टर थे? 1 2 3 4. So if you have to add these four vectors, you have to use triangular law 3 times. अगर आपके पास 5 वेक्टर्स होंगे तो आपको ट्रायंगुलर लॉ यूज करना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम्स? देन यू हैव टू यूज ट्रायंगुलर लॉ फॉर 4 टाइम्स. मतलब ऐसे तो आपको n-1 टाइम्स ट्रायंगुलर लॉ यूज करना पड़ता है. दिस इज जस्ट अ ट्रिक दैट आई टोल्ड यू. काम में आया कहीं तो यूज कर लेना, आएगा तो नहीं, बट स्टिल one interesting fact. So this particular topic is over, that is polygonal law. I have also given note over here stating that combination of application of triangular laws helps to find out resultant through polygonal law. So if we use our triangular law, it helps to find out polygonal law. अच्छा अभी मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, नोट बता रहा हूँ, वो नोट आपको अभी दिखा कि पहले दिख रहा था? अभी दिखा सर. अरे यार वही मैं बोल रहा हूँ कि देन कैसा हो जाएगा पता है, लिंक टूट जाएगा. I'll try to rejoin in the lecture. Okay, देखता हूँ नेट का सीन सॉर्ट आउट होता है क्या. Maybe the slow net internet is slow. I'll join. सर वो आपके वीडियो की वजह से हो रहा होगा. वीडियो को भी नेट लगता है ना इसलिए. मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसके लिए. सर आपका वीडियो भी ऑन है तो फिर स्क्रीन शेयर भी आप साथ में कर रहे हो तो उसके लिए उसको नेट का इश्यू हो जाता है स्क्रीन शेयर को. ओके बट यार वीडियो तो चाहिए ना. आई एम यूजिंग ऑन टू डिफरेंट डिवाइसेस रे. बट मतलब लाइक मेरा कैमरा का अकाउंट अलग है और ये वाला अलग है, तो नेट का ही इशू है. नॉर्मली नहीं होता है इतना.
सर अभी तो सेम ही दिख रहा है आपका ऑडियो और कैमरा एक ही डिवाइस है। वो नहीं दिया। स्क्रीन शेयरिंग मेरा दूसरे डिवाइस से चालू है, होस्ट वाले, एंड पीटीएम पे कैमरा है। तो मेरा कैसा दोनों कैप्चर हो ना वीडियो में, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अनदर मोबाइल। मॉम का समझा मोबाइल यूज सर। कर रहा हाँ हूँ। We'll wait for some minute. Let the internet restore itself. Till that particular point, we'll talk about some science related stuff. सर आप उस दिन को साइंटिस्ट का बोलने वाले थे। कौन सा? मेरी क्यूरी? पता क्यूरी नहीं ऑलरेडी। आपने। Which scientist? वही Like तो I know unknown। many scientists. I know many scientists मतलब मैं उनको जानता आप नहीं, बोलने मैंने वाले थे पढ़ा है। ना। कौन सा बट? लाइक सी बड़ी, आई फॉरगेट एवरीथिंग। मेरे को सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद रहते हैं, बाकी मैं भूल जाता हूँ। दैट टू ना, लाइक फिजिक्स के फॉर्मूलाज भी कभी कभी होता है ऐसा कि वी फॉरगेट थिंग्स दैट वी शुडंट हैव फॉरगॉटन। इट्स कॉमन। Yeah, I'll try to rejoin and we'll see what happens. So why don't you turn on your cameras रे? आप ऑन क्यों नहीं करते? करते हैं। हाँ अच्छा, बट बोलने का वेट करते हैं। Let's see whether it will work or not. ना, it's taking 4 seconds का lag. What if I turn off my video? We'll see. वीडियो में इशू नहीं है, मेरे इंटरनेट में इशू है। I cannot go outside also. Mobile internet won't work well inside. And I was thinking कि मैं आपको आज प्रूफ सिखाऊंगा एक बहुत बढ़िया सा। Okay, we'll try to go slow, एकदम slow जाएंगे and we'll see what happens. Okay. अरे काय का यार, नहीं होगा मेरे से, खुद नहीं होगा ये, इतना लैग ले रहा है ना वो। मैंने टर्न करके आई वेटेड फॉर 5 to 6 seconds now and it took me some time. Okay guys, give me 1 or 2 minutes. I'll restart my router. देखता हूँ उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर सॉल्व व्हेन यू रिस्टार्ट योर राउटर।
Okay, we'll try to see whether it is working right now. Please God, let it work, let it work, let it work. Okay. Yeah, it's back. So what is law of parallelogram of vector? Basically, that same student asked me another question. He said that, sir, I gave you some random vectors, you added them. I gave you more than two vectors, you added them. But now my challenge is little bit tough. What he actually did, he gave me two vectors. But this time, he gave them in such a way that both of these vectors originated from same point. That means अगर समझो आपको वेक्टर ए ऐसे दिया है, then vector b would be like this. This is what I'm talking about. ये vector b हो गया. So both of these vectors are actually originating from point O. इसको आप ट्रायंगुलर लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो ऑलरेडी अटैच है. आप क्या करोगे? आप इसको निकाल के इधर चिपकाओगे? नो, it is given that they should originate from the same point. Sir, why triangular law can't be applied? Because in order for triangular law should be applied or for triangular law to work perfectly fine, वो random होने चाहिए vector, separate होने चाहिए, तभी आप एक के end को दूसरे का start चिपकाओगे. But यहाँ पे क्या हो रहा है? They are originating from same point, and if they are originating from same point, triangular law work नहीं करेगा. Then what do? You need to create or you need to find resultant. And how do you find this resultant? आप क्या करते हो पता है? आप ये जो दिख रहा है आपको, जो भी आपका A and B है, उसको ना पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह ट्रीट करते हो. And you try to create complete parallelogram like this. As soon as you create complete parallelogram, ऐसे something like this, what exactly happen once you create it? You can see that I can draw a diagonal. Okay, so if I draw this diagonal, then this diagonal is actually the resultant of these two vectors. So you can write R equals to A plus B. मतलब, if there are two vectors that are originating from same point, then their resultant is diagonal or diagonal of the parallelogram starting from the same point, है ना? Same point से originate किया, diagonal खींचा हम लोगों ने. And this is how your resultant is created. ये किसके लिए true है? Parallelogram law के लिए true है. समझ रहे हैं? ये होता है आपका parallelogram law. बट इसको प्रूव करना भी तो जरूरी है. सर आपको कैसे पता चला कि ये जो आपने रिजल्टेंट बनाया वही रिजल्टेंट डायगोनल है, या फिर जो डायगोनल आपने बनाया वही रिजल्टेंट है? एंड दिस इज वेयर प्रूफ कम्स. बट बिफोर वी गो इनटू प्रूफ, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. ओके, तो स्टेटमेंट देखो कैसे बिहेव करता है ये. इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, stating them to be same type is very essential, क्योंकि you cannot add two vectors which are different. You cannot add force into velocity. Originating from same point, this is something extra. वो originate हो रहे same point से. Okay, if these are represented in magnitude and direction, represented in magnitude and direction मतलब ये arrow लेके बनाए हैं हम लोगों ने. जैसे Q का एरो ऐसे, P का एरो ऐसे, तो हमने कैसे उनको रिप्रेजेंट किया? इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन. और जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये कैसे दिखते हैं? दे लुक लाइक टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. देखिए ये साइड, ये साइड. देन देयर रिजल्टेंट vector is given in the magnitude and direction by diagonal of the parallelogram. तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? डायगोनल होता है. एंड डायरेक्शन क्या होगा उसका? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो यहाँ से उसका ओरिजिन होगा. अभी जिनको ये स्टेटमेंट रट्टा मारने के लिए टफ लग रहा है, उनके लिए आपको क्या करना है? आपको ये रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हटाना है, या फिर ऐसे ये हटाया.
ये हटाया. Now I want you to read the same statement again. It's now very easy for you to understand. पढ़ो जरा एक बार, आप अपने आप से पढ़ो, आपको आराम से समझेगा. बट ये जो स्टेटमेंट है ना, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें उसको याद रखना है. एक्सक्यूज मी सर. बोलना. सर जो 1 2 4th लाइन है ना, उस वो वाला समझाना जरा. टू एडजेसेंट साइड वाला. ओके, तो अभी देखिए दो वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स वो कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने. ये देख, साइड P, साइड Q. डोंट यू थिंक कि ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हुए. सो मतलब मैंने P एंड Q को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट किया है. गेटिंग द पॉइंट. हाँ, आगे बढ़ो अभी. थर्ड 3 लाइंस कौन सा, लास्ट 3 लाइंस. ओके, और लास्ट 3 सर लाइंस में बोल रहे हैं. हाँ बोल. रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर हुआ ना, मतलब. हाँ देखना, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हुआ. तो वो क्या बोल रहे हैं लास्ट 3 लाइन में कि रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का. देखिए डायगोनल हुआ पैरेललोग्राम का, तो वही तो वो स्टेटमेंट में बोल रहे हैं. और आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा, सेम पॉइंट से, मतलब ओ पॉइंट से. नाउ इज इट क्लियर. यस सर. व्हाट अबाउट यू पूजा. If two Yes, sir, vectors it's are clear. starting from the same point, then can we directly use triangular law? No ना, वही तो प्रॉब्लम है ना. अभी तूने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर सेम पॉइंट से ओरिजिन हो रहे तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ कैसे यूज करेंगे. नहीं, ट्रायंगुलर लॉ के लिए पहले वेक्टर के एंड को ही दूसरे वेक्टर का स्टार्ट अटैच करना जरूरी है. बट Yes. यहाँ पे दोनों का पॉइंट देख, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम है, सो यू कैन नॉट सेपरेट देम. लास्ट 3 लाइंस बोलते हैं कि देयर रिजल्टेंट, मतलब इन इन दो वेक्टर्स का, कौन से दो वेक्टर का, ये जो आपने P बनाया वो, और ये जो आपने Q और Q P. जो बना. हाँ, तो इनका रिजल्टेंट जो बन रहा है ना डियर, वो डायगोनल है. तो ये डायगोनल जो दिख रहा है वो हुआ ये. तो वो लास्ट लाइन में बोल रहे हैं. एंड वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है डायगोनल, सेम पॉइंट से जहां से P एंड Q ओरिजिन हो रहे हैं, उसी पॉइंट से. तो मतलब बेसिकली वो R को डायगोनल कंसिडर कर रहे हैं, बता रहे हैं. एंड साथ में साथ लास्ट लाइन में ये भी बता रहे हैं कि दिस डायगोनल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. नाउ इज इट क्लियर. Yes, sir. So it means वो C से start नहीं हो सकता, C2O. नहीं नहीं, O से ही स्टार्ट होना पड़ेगा. Okay. ओके, तो Thank दैट्स you, इट sir. फॉर, वेलकम, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम लॉ. ऐसा इतने जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी तो मूवी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर था. हमें प्रूफ भी तो करना है कि ये डायगोनल ही क्या बोलते हैं. बेसिकली ना हमें क्या प्रूफ करना है पता है, I'll tell you. पहले हम लोग ट्राई करेंगे प्रूफ को. ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रूफ, व्हाट आई विल डू, आई विल consider this vector as P vector and consider this vector as Q vector. Okay, so this is a simple parallelogram that I have created. Let this be OA, let this be B, let this be C. Okay, अच्छा, what is speciality of parallelogram, मतलब वो parallelogram क्यों बुलाया जाता है, कोई तो स्पेशल रीजन होगा. Opposite sides are Opposite parallel. opposite sides आता है. Opposite अपोजिट sides are साइड parallel. पैरेलल. अच्छा, वो सिर्फ पैरेलल होते हैं कि उनका लेंथ भी सेम होता है. Only parallel. पक्का. Sir, length can be also same, ना? हाँ Yes. हाँ, तो लेंथ सेम है और पैरेलल भी है. आरएन देन मतलब आरएन दीज देन इक्वल वेक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड. सो अगर समझो, या फिर ऐसे बोलो ना कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. एग्री करते हो कि नहीं, डायरेक्टली बोलो. एक्सट्रीमली सॉरी गाइस. So we can directly say that opposite sides
of parallelogram आर इक्वल, तो मतलब मैं मैग्नीट्यूड बिग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करूंगा, मैं शॉर्टकट मारूंगा क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है। तो आप अगर लेंदी प्रूफ है तो आपको फटाफट फटाफट करना जरूरी है। तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ओबी है वही वो एसी है, तो कैन यू राइट ओबी वेक्टर इक्वल्स टू एसी वेक्टर। तो अगर ओबी वेक्टर के घर का नाम क्यू है तो एसी वेक्टर के घर का नाम भी तो क्यू होना चाहिए ना रे, ये क्यू हुआ। तो OB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू Q। एकदम शॉर्ट वे में आपने प्रूव किया। सेम वे में आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि अगर समझो OA वेक्टर P है तो ये BC वेक्टर वो भी क्या होने वाला है P। तो ये मैंने Q वेक्टर बनाया और ये ऊपर हो गया P वेक्टर। नॉट दैट ऑफ अ सर बिग ये नहीं डील। समझा। क्या नहीं सच्ची में? अरे डियर सिंपल है, तू कंफ्यूज हो रही है। देख मेरे को एक बात बता, क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं? बराबर, यस स्कूल में पढ़ा था ये। तो अगर समझ ये साइड Q है तो ये साइड क्या होगा, Q वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यस यस तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दैट इज व्हाई OB एंड AC क्या हुआ, इक्वल हुआ। सेम वे में आप ये भी बता सकते हो कि ये OA एंड BC भी इक्वल है, बट हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। ओके आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या करना है, आपको ना इन दो वेक्टर्स को जानबूझ के इग्नोर करना है। किसको पता है, ये वेक्टर को और ये वेक्टर। और मैं कैसे इग्नोर करता हूँ, देखो मेरे पास तो टूल है तो आपको इमेजिन करने में थोड़ा मजा आएगा। मैं इनको हटा देता हूँ और इसको कहीं पे ना छुपा के रखता हूँ ताकि आपको दिखे नहीं, तो आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। अच्छा ये डायग्राम देख के आपके दिमाग में क्या आता है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड एज सून एज यू सी दिस डायग्राम? ट्रायंगुलर लॉ। यस 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 यस, क्या दिखता है, ट्रायंगुलर लॉ दिखा उसको, जो दिखा आपको दिखा। यस सर। ओके जिनको नहीं दिखा उनके लिए, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के एंड को सेकंड वेक्टर अटैच है, तो ये हुआ ना ट्रायंगुलर लॉ। हाँ, तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अटैच O एंड C टुगेदर। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट क्रिएट करोगे, लेट्स क्रिएट दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट and let's call this resultant as P plus Q। Now next आपको क्या करना है पता है, आपने ये तो प्रूव कर दिया कि ये रिजल्टेंट हुआ, ये प्रूव हुआ ना कि R रिजल्टेंट है, P plus Q का एडिशन R रिजल्टेंट है, प्रूव किया कि नहीं, एग्री की नहीं? अरे यस और नो, वी हैव प्रूव। हाँ तो वी कैन राइट R इक्वल्स टू P plus Q, कौन सा लॉ यूज किया, ट्रायंगुलर लॉ। ओके नाउ हियर कम्स द फन पार्ट। Here comes the fun part. What we are going to do, इसको फिर से अपने ओरिजिनल जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो जब मैं इसको ओरिजिनल जगह पे पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे फिर, ये क्या हुआ पैरेललोग्राम का, क्या हुआ ये रिजल्टेंट। डायगोनल। नहीं रिजल्टेंट तो पहले था ना, अभी रिजल्टेंट था, आई एग्री, बट जब मैं इसको ऐसे हाँ चिपकाता हूँ तो ये क्या हो गया, डायगोनल हुआ ना। Yes. यस तो इनडायरेक्टली जो अपना रिजल्टेंट आया वही अपना डायगोनल है, और यू कुड रीफ्रेम इट कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अवर रिजल्टेंट। इट्स लाइक सेइंग दिस कि गंगाधर ही शक्तिमान है, पता है आपको गंगाधर शक्तिमान? Yes. अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये Yes, sir. स्टेटमेंट, तो आई एम गोइंग टू टेल इट इन अनदर वर्ड। आपको पता है क्लर्क केंट ही सुपरमैन है, ये कितने लोगों को पता है? पता है। चल ये भी नहीं पता, अभी अभी मतलब गर्ल्स को तो नहीं पता, मेरे को पता है बहुत सारे। अच्छा एक अनदर एग्जांपल, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, ये भी नहीं पता? अच्छा ये तो समझ पता है जाएगा। सर। नहीं आपको पता है रे, गर्ल्स को नहीं पता, अभी मजा दे। टोनी स्टार्क की आयरन मैन है, पता है? गर्ल्स पता है कि नहीं टोनी स्टार्क आयरन मैन है? वो भी नहीं पता, पूछा तेरे को, हे भगवान, मार्वल की मूवी नहीं देखे, कोई बात नहीं। तो माय पॉइंट बीइंग ओवर हियर इज दैट अपने केस में भी रिजल्टेंट ही डायगोनल है या फिर डायगोनल ही रिजल्टेंट है। सो दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया ना कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एक्चुअली रिजल्टेंट, खत्म प्रूफ।
और ये प्रूफ मैंने शॉर्ट एंड स्वीट वे में, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम वे में यहाँ पे लिख के दिया है। देखो एड में क्या बोला है मैंने, फ्रॉम फिगर इट कैन बी सीन दैट आर इज डायगोनल एंड दैट इज व्हाई पैरेललोग्राम लॉ इज प्रूफ। ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट में डेरिवेशन हमें करना है। तो अभी जस्ट आपने एक चीज प्रूव की कि आपका जो आर है वो आर रिजल्टेंट है, जस्ट ये प्रूव किया। बट व्हाट इफ समबडी कम्स एंड आस्क यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर, मतलब आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड इट आउट? फॉर दिस टू हैपन यू नीड टू कंसिडर दिस डायग्राम। और अभी ये डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे पता है इसमें? पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अरे ये वाला मस्त दिखता है, वो डायग्राम से बेटर है, सो विल यूज दिस डायग्राम। अगर आपको ये प्रूफ समझना है तो आपको ज्योमेट्री आना चाहिए, बाकी कुछ, बाकी सब एकदम सिंपल है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर प्रूफ। लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको? यू आर गोइंग टू एक्सटेंड द लाइन ओ ए। तो ये जो नीचे ओ ए वाला लाइन दिख रहा है ना, आप इसको एक्सटेंड करोगे। आफ्टर दैट सेकेंड कंस्ट्रक्शन में आपको करना है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ओ ए। तो आपको ये जो सी दिख रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है नीचे। सो कंस्ट्रक्शन है, you guys had done this particular thing, perpendicular, हाँ you could say। ज्योमेट्री में किया होगा ना ये सारी चीजें, बहुत सारे प्रूफ में। यस सर। डन। अभी देखो, आई एम गोइंग टू नेम इट डी, ऐसे वो रैंडम नाम देते। अभी we are going to consider a an angle, okay, and this angle is between P and Q. So what I'm saying, let angle, बोलना सर एक बार फिर से बताओ ना, मैं मीटिंग से निकल गया था नेटवर्क इशू के लिए। कौन सा डायग्राम? Okay, I'll tell you. So what we are going to, कंस्ट्रक्शन किया ना वो, कौन सा वाला? दोनों आपने कंस्ट्रक्शन किया ना, उसी वक्त पे निकल गया। हाँ वही बता रहा हूँ बड़ी। तो मैंने क्या किया, ये अपना इतना ट्रायंगल तो ऑलरेडी था। मैंने क्या किया, मैंने ये OA को एक्सटेंड किया, OA के लाइन को पहले खींचा। दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया थे एंड इसको नाम डी दिया। समझा कंस्ट्रक्शन? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वी आर गोइंग टू कंसिडर एंगल बिटवीन P एंड Q, P एज थीटा। मतलब इसको थीटा एज्यूम किया, लेट बोला, आपको जो लेना है ले लो। आपको मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर ये एंगल कितना हुआ होगा? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। सो यू कैन सी कि ये जो है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा ना। तो मैंने बना दिया, you don't have to mention that, okay? Next, I'm going to consider two interesting triangles. The first one is triangle CAD। अभी मैं ना कैसे याद करता हूँ ना ये ट्राइंगल को, मैं भूलता कैसे नहीं, मैं ना उन ट्राइंगल का कुछ स्टोरी क्रिएट करता हूँ या फिर उन ट्राइंगल के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फर्स्ट ट्राइंगल मैं लूंगा, ये इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD. See, all the things that you are using right now, your mobile, your vehicle, even your jewelry that you are wearing right now is designed on computer. Correct ना? पहले कैसे होते थे? पहले शीट्स होते थे और वो शीट्स के ऊपर, व्हाइट शीट्स के ऊपर डिजाइन करते थे। बट द प्रोसेस वाज हेक्टिक एट दैट टाइम। नाउ यू हैव AutoCAD, you have CATIA, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है। Then ANSYS, where you can actually design entire aeroplane, बड़ी बड़ी चीजें से लेके छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो आप कंप्यूटर की हेल्प लेते हो, कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर का हेल्प लेके डिजाइन करते हो। इट्स अ वेरी बिग ब्रांच जहाँ पे बहुत, क्या बोलते हैं आप, अगर स्किल्स को डेवलप करोगे यू कैन ग्रो इवन मोर। तो आपको ये ट्राइंगल ढूंढना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाला, दिस वन।
Now, what we are going to do from this triangle, we are going to find out sine theta and cos theta. So let's first find out sine theta. The formula for sine theta is opposite upon hypotenuse. So I'm going to write opposite upon hypotenuse. But your opposite side is actually CD. So I'm going to write CD over here. And your hypotenuse is this one. So rather than calling it as AC, मैं directly इसको Q बोलता हूँ. So I'm going to write Q. Sir, why are you not considering vector sign over its head? The reason is very simple. My consideration is right now about magnitude. तो मुझे डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. So I'm gonna write sin theta CD upon Q. Okay, simple. Directly AC को Q पुट किया. यहाँ से डियर आप Q को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई के लिए भेज सकते हो. So you will get CD equals to Q sin theta. Let it be equation number 1. Similarly, we can find out cos theta from the diagram. Cos theta is actually adjacent upon hypotenuse. So that is ADJ upon HYP and that will be AD upon Q. So अपने पास जो AD है, it will become Q cos theta. Let it be equation number 2. So we are done with our first triangle. यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? If you have, you can message on that number PTM जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उसे मैसेज करो या फिर अनम्यूट करके पूछो. सर आपके फोन का एरोप्लेन मोड चालू क्यों है? फोन का नहीं, वो आईपैड का चालू है. वो the reason is that I don't use, मतलब ये this particular iPad doesn't have SIM card ना, SIM card वाला वर्जन नहीं. So I don't need it unnecessary का, तो मैं चालू रखता हूँ. even if I turn it on, I still get range. तो वाईफाई चलता है लाइट मोड पे भी. ओके सर यू डिड क्या बोल रहे हैं? वीडियो क्रॉप आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे थीटा. हाँ बस क्यू को इधर लेके इधर गया रे मैं, और मतलब मैंने सीडी को लेफ्ट में लिखा. वो तो चलता है ना उतना, मतलब इतना ज्यादा अभी हम लोग स्टेप्स नहीं दिखाना पड़ता. नाउ यू हैव ग्रोन अप. जो 10th में हम लोग ज्यादा स्टेप्स करते थे ना, अगर मैं 10th में होता तो मैं पहले ऐसे लिखता क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू सीडी, फिर नेक्स्ट में सीडी इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा. बट ये अभी यहाँ पे नहीं करना है, अपने पास उतना टाइम ही नहीं. सो वी आर डन विथ फर्स्ट ट्राइंगल. अभी सेकेंड ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल से भी स्पेशल है. कितने लोगों ने ओसीडी के बारे में सुना है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नहीं, थोड़ा. अच्छा, it's like a disease where you forget that you have done something. Like for example, I keep my phone for charging, and after 1 minute I forget that. So I go over there again and charge it again. मतलब like निकाल के फिर से. सर ये तो सबके साथ होता है, बट भाई मेरे साथ ये 10 बार होता है, आपके साथ एक बार हुआ होगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई डोंट हैव ओसीडी. पॉइंट इज दैट जिन लोगों को ओसीडी होता है, they do same thing repetitively again and again. There was one case in Sion Hospital which went like this. There used to be a person who actually जब वो काम पे जाता था, he used to lock his house and घर के बाहर निकलता था, 10 स्टेप जाता था, उसको रियलाइज होता था कि वो लॉक किया ही नहीं, तो रिटर्न आता. Then again he used to visit office and then he used to come back and then check. ऐसा एक बार हुआ, एक दिन में वो 2 बार आया, तो रियलाइज हो रहा है यार कुछ तो प्रॉब्लम होगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस सेम थिंग. तो ना he went to the doctor and they told him that you have OCD, that is obsessive compulsive disorder. आप मतलब होते हैं ऐसे लोग जिनको ना चीजों को बहुत क्लीन रखने की आदत है. लाइक फॉर एग्जांपल, राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ माय डेस्क आई हैव डिओड्रेंट, आई हैव चार्जर, आई हैव माय वॉलेट, मतलब लाइक रैंडम ऑर्डर में. बट देयर आर सम पीपल हु वोंट लाइक दिस थिंग, सो दे विल, मतलब आपका वॉलेट थोड़ा ऐसे टिल्टेड है ना, वो भी आपको सीधा करके देंगे. सो दे वांट थिंग्स नीट. उनको ओसीडी होता है, वो बार बार आप वो इरिटेट हो जाते हैं. आप ना उनके सामने ना अनहाइजेनिक बिहेवियर करके देखो, वो इरिटेट होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवर पेरेंट्स, वो तो रूम क्लीन करते हैं बट वो ऐसे इरिटेट नहीं होते. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दैट आर एक्चुअली फेसिंग दिस इश्यूज. ओके, तो ना आई गिव यू
हाँ, एंड एज के साथ ज्यादा होता है पूजा, करेक्ट। तो ना आपको ना, हाँ ये सेम करते रहते हैं, इट्स ट्रू, बट टेक इट एज अ जोक ओनली, लाइट जोक, व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर समझो आपको आपका रूम क्लीन करना है एंड यू आर जस्ट एज लेजी एज मी, यू कैन मैरी पर्सन हु हैज ओसीडी, आपको क्लीनिंग का कोई टेंशन नहीं। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। बट सर इज इट इन इट्स इन, नहीं 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 नहीं, उरी मूवी डिफरेंट है बड़ी। उरी मूवी का जो डिजीज है ना, वो आई थिंक डिमेंशिया है। आई एम नॉट गुड इन बायोलॉजी, बट इट्स लाइक कौन सा डिजीज, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली उसका। डिमेंशिया मतलब क्या होता है? डिमेंशिया इज द, मतलब इट्स अ सेट ऑफ डिजीजेस, मतलब ऐसा एक ग्रुप को बोलते हैं। वो ग्रुप वाले जो डिजीजेस होते हैं ना, डिमेंशिया का कोई भी डिजीज होगा ना, उसमें पीपल स्टार्ट टू फॉरगेट थिंग्स। ओके, यहाँ पे फॉरगेट नहीं करते, यहाँ पे रिपीटेटिव सेम टास्क करते हो, बट मतलब हाँ वही थोड़ा बहुत फॉरगेटिंग, बट एग्जैक्ट डिमेंशिया नहीं। उसमें तो आप लिटरली पर्सन भूल जाते हो, ओसीडी में ऐसा नहीं होता। ओके, ओसीडी इज समथिंग डिफरेंट, बट डेफिनेटली इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन ओनली। मेरे को इतना बायोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो